Assalamu alaikum, welcome to 8 English Academy 110. Here the instructor Hassan Ali Nawal. So guys, today the topic is noun and kinds of noun. Now what's noun and how many kinds of noun we'll discuss in this presentation. So let's have our attention with this one. Now noun. Guys, noun is derived from a nomen word, and nomen is the word of the Latin language. However, there are so many words in English language that are derived from the Latin language. Now, noun is from a Latin word nomen, and nomen means the name. So, names of persons, places, things or animals are its a naming word. नाउन अब किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, कोई चीज़, कोई जानवर, जिनके भी हम नाम लेते हैं वो हमारे पास क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं. और यू कैन सिंपली कॉल इट्स अ नेमिंग वर्ड. नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं भाई अहमद, पेन. अहमद इज द नेम ऑफ पर्सन, पेन इज द नेम ऑफ थिंग, ग्रुप इज द कलेक्टिव नेम, हैप्पीनेस इज द नेम ऑफ यू कैन कॉल इट द स्टेट, एंड स्टार्स. And despite this one there is teaching. So now nouns are divided into various types or kinds. अब हमारे पास ये ऊपर सारे जो हैं अहमद, पेन, ग्रुप, हैप्पीनेस, स्टार, टीचिंग, ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं. नाउ here the note is that one nouns are divided into various types or kinds. अब नाउन के बहुत सारे सब हमारे पास हैं. Now if we are talking about the kinds of noun, then at first there are common nouns and proper nouns. We discuss both of the nouns we consider both of the nouns in a consideration, just because common noun and proper noun are contrast to each other. That's why we are going to discuss them in a group discussion. Now what's a common noun and what's a proper noun? अब हमारे पास common nouns क्या होते हैं, proper nouns क्या होते हैं. So at first common nouns. Common nouns means the general or unspecified names are common नाउन्स. अब हमारे पास ऐसे नाम जो जनरल हो या जो अनस्पेसिफाइड, मतलब हमारे पास आम नाम हो, तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, कॉमन नाउन बनते हैं. जैसे इधर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देयर द एग्जांपल्स. पेन. अब पेन कोई भी बन सकती है. अगर आप डॉलर पेन लें तो वो भी पेन होती है, अगर आप पॉइंटर पेन लें तो वो पेन होती है. और इधर देयर इज अनदर वर्ड इज मैन. अब मैन इज द नेम ऑफ द पर्सन, एंड स्कूल is the name of the institute, or I have to say a man. हम किसी बंदे को, मतलब doesn't matter he the man is Ahmad, the man is Aslam, हम किसी को भी man कह सकते हैं. It means it's general for everyone. स्कूल, अब कोई भी स्कूल हो सकता है, तो वो हमारे पास जनरल बनता है. और रोड, N5 बन गया, M9 बन गया, GT5 बन गया. अब ये सारे रोड से, मगर मैंने कोई स्पेसिफाइड रोड नहीं दिया, जस्ट रोड दे दिया, सो इट्स कॉमन नाउन और ग्राउंड. अब ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं, कॉमन नाउन बनते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉपर नाउन, देन प्रॉपर नाउन्स आर द नाउन्स दैट आर स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर नेम्स. अब हमारे पास ऐसे नाम जो खास हों, जो अहम नाम हो, वो हमारे पास क्या बनते हैं, प्रॉपर नाउन. जैसे इधर हमारे पास था पेन, तो मैंने इधर क्या दे दिया भाई, डॉलर पेन, सही है. और इधर मेन था, तो मेन के बदले मैंने अहमद दे दिया. देयर इज स्कूल, आई मेंशनड हियर द स्कूल नेम इज द बीकन हाउस. रोड, N5. नाउ हियर देयर इज द वर्ड रोड व्हिच इज नोन एज द कॉमन नाउन. हियर N5 is the name of the road, that's why it's known as the proper noun. Now Karachi National Stadium is a ground or playing stadium है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, प्रॉपर नाउन बनता है. बट इफ आई एम आस्किंग दैट व्हाट्स द वर्ड स्टेडियम, स्टेडियम इज कंसिडर्ड एज द कॉमन नाउन. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कराची नेशनल स्टेडियम, then it becomes proper noun eventually. Now there is another strategy in common nouns and proper nouns. So we have been so many times from common nouns and proper nouns through their general and their particular criteria respectively. But there are two sentences over the screen. Now over the screen he is Feroz Khan of Sindh, and there is another sentence is Hania is Mahira Khan of Moro. Now in these sentences the underlined word Feroz Khan and Mahira Khan are eventually, if they comes in front of us individually, then they are considered as the proper noun. अब अलग
तरह से फिरोज खान हमारे पास कोई नाम आ जाता है, माहिरा खान कोई नाम आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, प्रॉपर नाउन बनता है. बट इफ इट कम्स इन दिस सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन में कोई सेंटेंस हमारे पास आ जाए, इज फिरोज खान ऑफ सिंध, अब ये सिंध का फिरोज खान है, देन दिस फिरोज खान इज कंसिडर्ड एज द कॉमन नाउन. अब ये फिरोज खान हमारे पास क्या बना, कॉमन नाउन बना. यस, हमें पता है कि फिरोज खान इज नोन एज द प्रॉपर नाउन, बट इफ द सेंटेंस कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस सिचुएशन, देन इन दिस सिचुएशनल क्राइटेरिया इट्स कंसिडर्ड एज द कॉमन नाउन. अब ये हमारे पास क्या बनता है, फिरोज खान जो वर्ड वो बनता है कॉमन नाउन. और सिंध इज नोन एज द प्रॉपर नाउन. अभी फिरोज खान हमारे पास कॉमन नाउन इसलिए बन रहा है बिकॉज आई एम कंसिडरिंग ही पर्सन एज द फिरोज खान. नाउ वन फिरोज खान इज द एक्टर ऑफ पाकिस्तान ड्रामेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान ड्रामास्ट जो पाकिस्तान ड्रामे करता है या फिल्म्स करता है, वो फिरोज खान. अब एक बंदा वो है और दूसरा बंदा मैं किसको समझ रहा हूँ, इस ही को. दैट्स वाई द फ्लक्चुएशन आर आई हैव टू से द पर्टिकुलराइजेशन, the usuality of the Feroz Khan and usuality of the Feroz Khan depreciated. That's why here the Feroz Khan is considered as the common noun. And in the same way, Hania is the Mahira Khan of Moro. The same sentence Mahira Khan is considered as the common noun. अगर हमारे पास इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाए जो बीच में, तो बीच में जो सेलिब्रिटी का नेम होता है वो हमारे पास क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है. So that's all about the common noun and proper noun. Now there is another type of noun is also known as material noun. अब हमारे पास noun का एक और टाइप है जिसे material noun बोलते हैं. Now what is a material noun? So material noun, those nouns out of which other nouns are made are known as material nouns. अब कोई ऐसे nouns हो जिनसे दूसरे noun बने तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, material nouns बोलते हैं. Suppose let's example गोल्ड, जैसे गोल्ड से हमारे पास गोल्ड रिंग बन जाती है, सिल्वर से हमारे पास सिल्वर रिंग बन जाती है, आयरन से हम जो है आयरन डोर बनवा लेते हैं, वुड से हमने चेयर बनवा ली, वाटर से हमने जो है मतलब आइस बनवा ली. नाउ वाटर इज वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. वाटर इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल. अब वाटर हमारे पास जो है वो क्या बनता है, मटीरियल नाउन तो बनता ही बनता है, मगर वाटर समटाइम्स एक्ट एज द कंक्रीट नाउन ऑल्सो. सो वाटर अब हमारे पास मटीरियल नाउन इस सूरत में है बिकॉज वाटर एक जो है लिक्विड फॉर्म है और लिक्विड से हमने आइस बना ली तो इससे कुछ ना कुछ मटेरियल तो बना. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द मटेरियल नाउन. अब दूसरा प्लास्टिक की हमारे पास चेयर से हम स्टील के हमारे पास टैंक्स होते हैं या स्टील के हमारे पास बर्तन वगैरह होते हैं, तो ये हमारे पास मटेरियल नाउन है. नाउ फॉर अ मटेरियल नाउन, नाउ देयर इज अ नोट, मटेरियल नाउन्स कैन बी कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. यस इट्स ऑब्वियसली, अब ज़ाहिर सी बात है हम गोल्ड को तो काउंट नहीं कर सकते. वी आर अनेबल टू काउंट दी गोल्ड और सिल्वर और आयरन और एट्सेट्रा द एग्जाम्पल्स दैट आर मेंशन इन द मटेरियल नाउन्स, वो हम कभी भी गिन नहीं सकते. सो फ्रॉम दिस लेक्चर we have got a sense of the uncountable nouns and countable nouns. So let's discuss uncountable nouns and countable nouns in the same material noun. Now all the uncountable nouns are considered as the material noun. अब जो भी हमारे पास uncountable nouns होते हैं वो हमारे पास, अच्छा, all the material nouns are considered as the uncountable noun. जो भी हमारे पास material nouns हैं वो क्या बनते हैं, हमारे पास uncountable nouns बनते हैं. पर यह ज़रूरी कभी भी नहीं है कि सारे uncountable noun हमारे पास material noun बने. So all the materials can be called uncountable. Now what is uncountable? Those nouns that cannot be counted or that don't have any plural form are known as the uncountable noun. अब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऐसे नाउन जो गिन ना सके हम उन्हें क्या बोलते हैं, uncountable nouns. मगर there is another definition is by those nouns that don't have any plural form are known as the uncountable noun. जिनका कोई plural form ना वो हमारे पास क्या बनते हैं, uncountable form बनते हैं, noun बनते हैं. Suppose जैसे mud, plastic, silver, iron, sand. Now you are unable to count mud, unable to count plastic, silver, iron and sand. And there are no any plural forms of these words. अब मड, प्लास्टिक और सिल्वर, अब इन चीज़ों के हमारे पास कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ इफ वी हैव टॉक्ड अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन्स, देन लेट्स हैव अ टॉक ऑन काउंटेबल नाउन्स. नाउ व्हाट आर द काउंटेबल नाउन्स? Now there misprinting of the presentation is
Now there is an uncountable noun. We have to add first a correct this thing. Now that's all about the countable noun. अब हमारे पास ये चीज़ क्या बनती है, काउंटेबल बनती है, सही है. सो लेट बी एड फर्स्ट करेक्ट दिस वन. नाउ दिस इज ऑल अबाउट दी काउंटेबल नाउन. अब हमारे पास एक काउंटेबल नाउन्स क्या बनते हैं, दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड और दैट हैव प्लूरल फॉर्म आर नोन एज दी अनकाउंटेबल नाउन्स. अब ऐसे नाउन्स जिनका हमारे पास जो है प्लूरल फॉर्म बने तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, काउंटेबल नाउन्स बनते हैं. सो काउंटेबल नाउन्स ऐसे फॉर्म्स जिनका हमारे पास जो है प्लूरल फॉर्म बने तो हाँ वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स है. जैसे स्टार्स. नाउ देर आर सो मेनी स्टार्स. Now there is a plural form of the word star. From the word star up to the stars. Bench up to the word benches. Boy up to the word boys. Grain grains. Marker markers. So अब जिनका हमारे पास प्लूरल फॉर्म बने या जो हम काउंट कर सकें, those nouns are considered as the countable nouns. Now there is another strategy of the noun is known as the other type of noun is collective noun. Now what are the collective nouns? Group of nouns of similar category is known as collective noun. अब similar सेम कैटेगरी वाले सारे nouns उनका एक ग्रुप जो है वो ग्रुप क्या बनता है, कलेक्टिव नाउन. और यू कैन से मेनी नाउन्स, बहुत सारे हमारे पास नाउन्स हो कॉल अंडर वन नेम जो एक ही नाम से बुलाए जाए. सो मेनी नाउन्स कॉल अंडर वन नेम आर नोन एज दी कलेक्टिव नाउन. बहुत सारे नाम जो है हमारे पास एक ही नाम से बुलाए जाए तो वो सारे नाउन्स हमारे पास क्या बनते हैं, कलेक्टिव नाउन बनते हैं. जो भी हमारे पास जो नाउन का एक ग्रो हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, सही है. सो कलेक्टिव नाउन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. जैसे एग्जांपल्स के तौर पे भाई ग्रुप आ गया हमारे पास, बंच आ गया, डजन आ गया, टीम, क्लास, क्राउड. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड डजन, देन 1 egg, 2, 3, 4. There are so many eggs. If I am considering 12 eggs, now I can say 12 eggs or I have to say a dozen of eggs. So a dozen word is considered as the collective noun. Now suppose I have purchased a dozen of eggs. Now here the red underlined word dozen word is considered as the collective noun. The team is on fire. The word team is known as the collective noun. Group of boys is still hidden. The word group is known as the collective noun. Now there is another noun which is known as the abstract noun. अब abstract nouns हमारे पास क्या बनते हैं, abstract noun. A noun that cannot be seen nor touched is known as an abstract noun. अब ऐसा कोई नाउन जिसे हम देख ना सके, ऑब्वियसली जो नाउन हमें दिखाई नहीं देता तो हम उसे तो टच कर ही नहीं सकते. So or there is another definition is नेम्स ऑफ स्टेट्स, क्वालिटीज़ एंड एक्शंस आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये डेफिनेशन हम आगे जाके समझेंगे कि डेफिनेशन क्यों है हमारे पास. सो द एग्जांपल्स आर ट्रायल, कोशिश. अब कोशिश हमें नज़र नहीं आती है. हैप्पीनेस, खुशी नज़र नहीं आती है. ब्यूटी, किसी बंदे की खूबसूरती नज़र नहीं आती है. बंदे का चेहरा नज़र आता है मगर खूबसूरती नज़र नहीं आती है. हाइट, हाँ फिज़िकल में आप उस बंदे की मतलब जो है फेस देख सकते हैं, उस बंदे की बॉडी देख सकते हैं, मगर इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू वॉच और टू लुक फॉर द हाइट. नाउ ब्रदरहुड मीन्स द लव बिटवीन द ब्रदर्स और द फैमिलीज. सो अब ये हमारे पास क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन is further classified into the words state, quality and action. अब abstract noun में abstract noun sometimes expresses the state, sometimes expresses the quality, sometimes expresses the action. It depends upon the nature of the word from which abstract noun is extracted. अब जिस word से हमारे पास जो abstract noun extract हुआ है वो इस पर dependent है. So at first स्टेट. नाउ जब भी वर्ड आ जाए स्टेट, सो स्टेट जो हमारे पास कॉमन नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स से जो नाउन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने वो हमें क्या शो करते हैं, स्टेट. जैसे हमारे पास वर्ड है ब्रदर, तो फ्रॉम द वर्ड ब्रदर देयर इज वर्ड ब्रदरहुड. ब्रदरहुड इज कंसिडर्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेबर, नेबरहुड. फ्रेंड, फ्रेंडशिप. एनिमी, दुश्मन. एनिमिटी, दुश्मनी. अब दुश्मनी नज़र नहीं आती है मगर हमें दुश्मन नज़र आता है. सो दोज नाउन्स, कॉमन नाउन्स
जिन कॉमन नाउन से हमारे पास कुछ वर्ड्स मिला के जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने वो हमें क्या बताता है, स्टेट बताता है. नाउ देयर इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द क्वालिटी. नाउ अब जो नाउन हमारे पास एडजेक्टिव से जाके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने वो हमें क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं. जैसे हाई मतलब ऊंचा. नाउ दिस इज क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. नाउ हाइट इज कंसिडर्ड एज द height is considered as the abstract noun that expresses the sense of quality. Beautiful मतलब खूबसूरत, कोई लड़की. एंड ब्यूटी मतलब खूबसूरती. नाउ ब्यूटी ऑफ द नेचर जैसे हम कह देते हैं, तो अब नेचर कोई लड़की तो नहीं है ना, तो नेचर की ब्यूटी जो है हम फील कर सकते हैं, वी कैन रियलाइज, बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू लुक फॉर द ब्यूटी, टू वॉच द ब्यूटी. नाउ सो ब्यूटी इज कंसिडर्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इंटेलिजेंट कोई बंदा होशियार है. नाउ इंटेलिजेंस किसी बंदे की होशियारी नज़र नहीं आती है. हॉट मतलब कोई गर्म है, जैसे हॉट वाटर तो गर्म वाटर वो हमें मतलब नज़र भी आता है, वाटर तो हमें ऑब्वियसली नज़र आता है. एंड हॉट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट वाटर. नाउ हीट, अब हमारे मतलब जो है एनवायरनमेंट में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो हीट हमें नज़र नहीं आती है. नाउ द लास्ट स्ट्रैटेजी इज द एक्शन. अब एक्शन लफ्ज़ से तो हमें पता चल गया देयर इज अ टॉक ऑफ अ वर्ब. अब वर्ब से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने वो हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन. नाउ देयर इज द वर्ड ट्राई मतलब कोशिश करना. दिस नोट इज द वर्ब फ्रॉम द वर्ब ट्रायल, कोशिश. अब कोशिश हमें नज़र नहीं आती है. टीच, नाउ टीच मीन्स किसी बंदे को कुछ पढ़ाना, सही है, मतलब सिखाना. एंड टीचिंग, टीचिंग इज द प्रोफेशन. प्रोफेशन कैन नॉट बी सीन. डिसाइड मतलब फैसला करना, दिस नोट इज द एक्शन वर्ब. एंड डिसीशन फैसला, अब फैसला नज़र नहीं आता. नाउ देयर इज द वर्ड गो. गो मतलब जाना. एंड गेट मतलब कोई मतलब कहीं से गुजरो. अब हेयर द वर्ड गेट डजंट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द मटीरियलिस्टिक थिंग. अब इधर जो वर्ड हमारे पास गेट है वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है. इधर वो गेट हमारे पास क्या है, कहीं जगह से हमारा कोई गुज़र हो तो वो गुज़र हमारे पास क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है जो कि हमें एक्सप्रेस करता है एक्शन. सो with this we have done with all the kinds of noun and with the noun. So with this wa akhir dawana walhamdulillah. Thank you so much for today.